اگلی ایپیسوڈ میں آپ کچھ اس طرح سے دیکھیں گے، یعنی کہ زنیرہ تو کہتی ہے رومی سے کہ میں تو غزنی کا کام تمام کر رہی ہوں، کیونکہ غزنی کے اس کے دشمن جس کا نام ہے دلاور، اس کو میں کہہ دیتی ہوں کہ غزنی فلاں فلاں جگہ پہ رہتا ہے اور اس کی ایک محبوبہ ہے جس کا نام ہے دعا، اور اس کے والیے تو غزنی صدقے اور واری جاتا ہے۔ زنیرہ نے دعا کو کمزوری سمجھ لیا ہے نوشیروان کی، اور صاف صاف کہہ دیا کہ میں دلاور کے ہاتھوں اب دیکھو نوشیروان کا کیا حال کرواتی ہوں، یعنی کہ اس کا پتلا صاف کروا دیتی ہوں۔ ادھر دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کشمالا نے زنیرہ کو کہل کی اور صاف صاف کہہ دیا کہ میرا کام ہوا ہے یا نہیں، اگر بی بی کام نہیں ہوا تو مجھے پیسے واپس دے دو۔ آگے سے زنیرہ کشمالا سے کہے گی کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہوا، اس وقت میں خود مصیبت میں ہوں۔ کشمالا کہتی ہے یہ سب کچھ تم نے پہلے سوچنا تھا، مصیبت میں ہو یا نہیں، میری رقم تم نے بھاری منہ مانگی رقم لی ہوئی ہے، لیکن میرا کام اتنی دیر تم کر رہی ہو۔ آگے سے زنیرہ کہے گی تمہارا کام نہیں ہونے والا، یعنی کہ تمہارا کام نہیں ہوگا۔ کشمالا کہتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پیسے بھی لے لیے اور کام بھی نہیں ہو سکتا، آگے کون سی مصیبت نے تجھے آن گرا ہے۔ اور آگے سے پھر زنیرہ کہے گی کہ نوشیروان غزنی جس کی بیوی کو مروانے کے لیے تم کہہ رہی ہو، بی بی کشمالا یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت ہی مشکل کام ہے، میں تو اس کو مروانے کے لیے پتہ نہیں کچھ کرتی یا نہ کرتی، لیکن نوشیروان غزنی تو میرے لالے پڑ چکے ہیں، یعنی وہ آیا ہے اور اس نے مجھے آ کے دھمکی دی ہے، یعنی کہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 2 دن کے اندر یہ شہر چھوڑ دو ورنہ تیرا کام تمام کر دوں گا۔ اور کشمالا مجھے اپنی جان کی پری ہوئی ہے اور میں اپنا اڈا یہاں سے اٹھوا کے کسی دوسرے شہر جا رہی ہوں، اور برائے مہربانی مجھے آج کے بعد تم نے کال مت کرنی، میں نہیں جانتی کون نوشیروان اور کون دعا، یعنی کہ ہماری یہ جو زنیرہ تھی یہ تو اپنی جان بچا کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ کشمالا تو زنیرہ کے پیچھے ہی پڑ گئی اور صاف صاف کہہ دیا کہ میری بات سنو، اور دھمکی دے دی کشمالا نے زنیرہ کو کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور اگر میرا نام لیک ہو گیا، یعنی کہ نوشیروان کو پتا چل گیا کہ میں نے تمہیں پیسے دے کے دعا کو مروانے کے لیے کہا تھا اور دعا مرتی بھی نہیں اور میں لیک بھی ہو جاتی ہوں، نوشیروان کو پتا بھی چل جاتا ہے میری حقیقت اور اصلیت کے بارے میں، تو پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر کروں گی۔ کشمالا زنیرہ سے یہ بھی کہے گی کہ میری بات سنو، اگر تم یہ کام نہیں کرتی تو تمہیں دعا کیا مروانا، میں تمہیں خود مروا دوں گی۔ کشمالا نے زنیرہ سے یہ کہا تمہیں نہیں پتا میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ زنیرہ نے تو کشمالا سے صاف صاف کہہ دیا اگر تمہارے ہاتھ اتنے ہی لمبے تھے تو تم نے دعا کو خود کیوں نہیں مروا لیا، لیکن مجھے کیوں پیسے دیے۔ اور آگے سے کشمالا کہے گی کہ میرا کام کر دو ورنہ میں رقم بھی لے لیتی ہوں اور تمہیں بھی مروا دوں گی۔ اور آگے سے زنیرہ نے جب کشمالا کی یہ دھمکی سنی تو زنیرہ تو پہلے زنیرہ تھی، زنیرہ شریف نہیں بلکہ بدنام زمانہ عورت ہے، اڈا چلانے والی عورت ہے، اور روپیہ اور پیسے کے سوا کوئی بات نہیں کرتی، سانس بھی لے تو پیسے کے ساتھ۔ زنیرہ نے تو آگے صاف صاف کہہ دیا کشمالا بی بی یہ دھمکی کسی اور کو دینا، میں زنیرہ ہوں، میں بڑے اڈے چلا رہی ہوں اور مردوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں، اور تم نے یہ جو مجھے دھمکی دی ہے نا کہ میں مروا بھی دوں گی اور پیسے بھی لے لوں گی، ایسا ناممکن ہے، اگر تم نے مجھے دھمکی دی ہے تو میری طرف سے تم دھمکی وصول کرو۔ زنیرہ نے کشمالا سے کہہ دیا اگر تمہاری حقیقت، تمہارے پیسے، تمہاری کالز، تمام ثبوت اگر میں نوشیروان غزنی کو دے دیتی ہوں تو پھر دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا غزنی تمہیں طلاق دے کے رفو چکر یعنی کہ تمہارا کام تمام کر دے گا۔ زنیرہ نے تو کشمالا کو دھمکی دی اور کشمالا نے زنیرہ کو دھمکی دی۔ اب نہیں پتا چلے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ دونوں کی دھمکیاں اگلی ایپیسوڈ تک کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، کیا کشمالا کی دھمکی زنیرہ کو واقعی قبول ہو جائے گی یا زنیرہ واقعی پیسوں سے ڈر جائے گی کہ مجھ سے پیسے لے لے گی کشمالا، یا کشمالا مجھے مروا دے گی۔ لیکن یہاں پہ باجی ریویو آپ کو اپنی پریڈکشن دیتی ہے، کشمالا یعنی کہ وہ تو مروانے کے لیے دعا کو بہت کچھ کر رہی ہے لیکن اس بار دعا بچ جائے گی اور کشمالا ناکام ہو جائے گی، کیونکہ جعفر کو بھی کشمالا کی حقیقت کے بارے میں سارا پتا ہے اور نوشیروان اور اس کے گھر والوں کو بھی تمام شک ہے، اور دعا کو بھی پتا ہے ہر بندہ کشمالا سے الرٹ ہو کے بچ کے چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ نوشیروان وہ تو دعا کے لیے صدقے واری جا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین دوسری طرف آپ دیکھیں گے کشمالا جو بہت ہی زیادہ پریشان ہے اپنی ماں باپ کے پاس آئے گی اور صاف آ کے کہے گی کہ مجھے نہیں پتا، بچوں کو باپ کی ضرورت ہے
और मुझे शोहर की जरूरत है। जहां दुआ रह रही है नौशरवान गजनी के साथ, मुझे भी वहां रहना है। या नौशरवान गजनी को इधर बुलाए या मुझे शहर में भेज दें। ऐसे कैसे हो सकता है? 4 साल हो चुके हैं हमारी शादी हुए को, लेकिन अभी तक उसने मुझे कबूल नहीं किया। और आगे से गजनी की माँ कहती है, मेरी बात सुनो कशमाला, जल्दबाजी में मत पड़ो, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में उतरो, ठंडा करके खाओ। ऐसे करोगी तो तलाक हो जाएगी। गजनी तुम्हें एक आंख भी नहीं तुम्हें देख रहा, देखना चाहता, पसंद नहीं करता। और आगे से यानी कि गजनी का बाप कशमाला से साफ कहेगा, गजनी तो सिर्फ और सिर्फ रिश्ता निभा रहा है तो हमारी वजह से, हमने उसके ऊपर प्रेशर दे रखा है, वरना अगर उसकी बात की जाए तो तुम्हें तो वो कभी भी कबूल नहीं करता। कशमाला आगे से कहेगी कि ये सारी धमकियां मुझे मत सुनाएं, मुझे मत सुनाएं, मुझे फिलहाल मुझे मेरा हक चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा मैं अदालत में जाऊंगी, अदालत में जाऊंगी। नाज़रीन सामीन, कशमाला अपनी सास ससुर के सामने रो धो के चली जाती है। अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे, कशमाला ने तो अपने बच्चों को डाल बना के रख दिया, यानी कि साफ साफ कह दिया, अपने बच्चों को कह दिया, गजनी चच्चू आएंगे ना तो उन्हें कहना, चाचा ताया अब्बा हमने भी आपके साथ जाना है, हमें भी साथ लेके जाओ। और अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, नौशरवान गजनी अपनी माँ बाप से मिलने के लिए गांव में हवेली में आता है, तो वहां पे कशमाला बड़ा हंस के इस्तकबाल करती है। लेकिन नौशरवान गजनी ने हमेशा ही तरह कशमाला को इग्नोर किया, लेकिन कशमाला ने अपने बच्चों को गजनी के आगे कर दिया। और गजनी जब अपने माँ बाप से और बच्चों से मिलके दोबारा शहर वापस आने लगेगा तो वो बच्चे आगे खड़े हो जाएंगे दोबारा और हाथ जोड़ के कहेंगे कि बाबा आप तो हमारे चाचू थे, लेकिन किस्मत ने आपको हमारा पापा बना दिया है, लेकिन हमें भी अब आपके पास जाना है, तो खुदा का वास्ता है या आप यहाँ पे आ जाए या हमें अपने पास बुला लें, बाबा हम अब इकट्ठे रहना चाहते हैं। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, यानी कि गजनी नौशरवान गजनी जाफर को हुक्म देगा कि मुझे नहीं पता, जल्दी जल्दी जाओ और जुनैरा से कहो अपना अड्डा 2 दिन के अंदर साफ कर दे, वरना तेरा काम तमाम कर दूंगा। और गजनी जाफर को ये भी कहेगा कि जो जुनैरा से हम वीडियो लेके आए थे उसके अंदर जो लड़का या आदमी नजर आ रहा है उसका पता करो, वो लड़का कौन है और कहाँ का है। और आगे से अगली एपिसोड में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मजीद बातें आपको अगर जानिसार की जाननी है तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा सारा कमेंट तो जरूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नामों में से 10 नाम 10 कमेंट में लिख के जाइएगा। चले जी, अब बात करते हैं जानिसार ड्रामे की अगली मुकम्मल प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि कंप्लीट स्टोरी के बारे में। क्या होगा इस एपिसोड में? ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग होगा या कि सैड? अगली एपिसोड में आप कुछ इस तरह से देखेंगे, यानी कि जुनैरा तो कहती है रूमी से कि मैं तो गजनी का काम तमाम कर रही हूँ, क्योंकि गजनी के उसके दुश्मन जिसका नाम है दिलावर, उसको मैं कह देती हूँ कि गजनी फलां फलां जगह पे रहता है और इसकी एक महबूबा है जिसका नाम है दुआ, और उसके वालिये तो गजनी सदके और वारी जाता है। जुनैरा ने दुआ को कमजोरी समझ लिया है नौशरवान की और साफ साफ कह दिया कि मैं दिलावर के हथों अब देखो नौशरवान का क्या हाल करवाती हूँ, यानी कि इसका पतला साफ करवा देती हूँ। उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, कशमाला ने जुनैरा को कॉल की और साफ साफ कह दिया कि मेरा काम हुआ है या नहीं, अगर बीबी काम नहीं हुआ तो मुझे पैसे वापस दे दो। आगे से जुनैरा कशमाला से कहेगी कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, इस वक्त मैं खुद मुसीबत में हूँ। कशमाला कहती है ये सब कुछ तुमने पहले सोचना था, मुसीबत में हो या नहीं। मेरी रकम तुमने भारी मुंह मांगी रकम ली हुई है, लेकिन मेरा काम इतनी देर तुम कर रही हो। आगे से जुनैरा कहेगी तुम्हारा काम नहीं होने वाला, यानी कि तुम्हारा काम नहीं होगा। कशमाला कहती है ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं हो सकता, आगे कौन सी मुसीबत ने तुझे आन गिरा है। और आगे से फिर जुनैरा कहेगी कि नौशरवान गजनी जिसकी बीवी को मरवाने के लिए तुम कह रही हो, बीबी कशमाला ये कोई आसान काम नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो उसको मरवाने के लिए पता नहीं कुछ करती या ना करती, लेकिन नौशरवान गजनी तो मेरे लाले पड़ चुके हैं, यानी वो आया है और उसने मुझे आके धमकी दी है,
यानी कि यहाँ तक कह दिया है कि 2 दिन के अंदर ये शहर छोड़ दो वरना तेरा काम तमाम कर दूंगा। और कशमाला मुझे अपनी जान की परी हुई है और मैं अपना अड्डा यहाँ से उठवा के किसी दूसरे शहर जा रही हूँ, और बराए मेहरबानी मुझे आज के बाद तुमने कॉल मत करनी। मैं नहीं जानती कौन नौशेरवान और कौन दुआ। यानी कि हमारी ये जो जुनैरा थी ये तो अपनी जान बचा के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि कशमाला तो जुनैरा के पीछे ही पड़ गई और साफ साफ कह दिया कि मेरी बात सुनो, और धमकी दे दी कशमाला ने जुनैरा को कि अगर तुमने ये काम नहीं किया और अगर मेरा नाम लीक हो गया, यानी कि नौशेरवान को पता चल गया कि मैंने तुम्हें पैसे दे के दुआ को मरवाने के लिए कहा था और दुआ मरती भी नहीं और मैं लीक भी हो जाती हूँ, नौशेरवान को पता भी चल जाता है मेरी हकीकत और असलियत के बारे में, तो फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करूंगी। कशमाला जुनैरा से ये भी कहेगी कि मेरी बात सुनो, अगर तुम ये काम नहीं करती तो तुम्हें दुआ क्या मरवाना, मैं तुम्हें खुद मरवा दूंगी। कशमाला ने जुनैरा से ये कहा, तुम्हें नहीं पता मेरे हाथ बहुत लंबे हैं और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जुनैरा ने तो कशमाला से साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हारे हाथ इतने ही लंबे थे तो तुमने दुआ को खुद क्यों नहीं मरवा लिया, लेकिन मुझे क्यों पैसे दिए। और आगे से कशमाला कहेगी कि मेरा काम कर दो वरना मैं रकम भी ले लेती हूँ और तुम्हें भी मरवा दूंगी। और आगे से जुनैरा ने जब कशमाला की ये धमकी सुनी तो जुनैरा तो पहले जुनैरा थी। जुनैरा शरीफ नहीं बल्कि बदनाम जमाना औरत है, अड्डा चलाने वाली औरत है और रुपया और पैसे के सिवा कोई बात नहीं करती, सांस भी ले तो पैसे के साथ। जुनैरा ने तो आगे साफ साफ कह दिया, कशमाला बीबी ये धमकी किसी और को देना, मैं जुनैरा हूँ, मैं बड़े अड्डे चला रही हूँ और मर्दों के साथ मैं काम करती हूँ, और तुमने ये जो मुझे धमकी दी है ना कि मैं मरवा भी दूंगी और पैसे भी ले लूंगी, ऐसा नामुमकिन है। अगर तुमने मुझे धमकी दी है तो मेरी तरफ से तुम धमकी वसूल करो। जुनैरा ने कशमाला से कह दिया, अगर तुम्हारी हकीकत, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी कॉल्स, तमाम सबूत अगर मैं नौशेरवान गजनी को दे देती हूँ तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारा गजनी तुम्हें तलाक दे के रफू चक्कर यानी कि तुम्हारा काम तमाम कर देगा। जुनैरा ने तो कशमाला को धमकी दी और कशमाला ने जुनैरा को धमकी दी। अब नहीं पता चलेगा आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों की धमकियां अगली एपिसोड तक कहां तक कामयाब होती हैं। क्या कशमाला की धमकी जुनैरा को वाकई कबूल हो जाएगी या जुनैरा वाकई पैसे से डर जाएगी कि मुझसे पैसे ले लेगी कशमाला, या कशमाला मुझे मरवा देगी। लेकिन यहाँ पे बाजी रिव्यू आपको अपनी प्रेडिक्शन देती है। कशमाला यानी कि वो तो मरवाने के लिए दुआ को बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इस बार दुआ बच जाएगी और कशमाला नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जाफर को भी कशमाला की हकीकत के बारे में सारा पता है और नौशेरवान और उसके घर वालों को भी तमाम शक है और दुआ को भी पता है। हर बंदा कशमाला से अलर्ट होके बच के चल रहा है, लेकिन वहां पे नौशेरवान वो तो दुआ के लिए सदके वारी जा रहा है। नाज़रीन सामीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कशमाला जो बहुत ही ज्यादा परेशान है अपनी माँ बाप के पास आएगी और साफ आके कहेगी कि मुझे नहीं पता, बच्चों को बाप की जरूरत है और मुझे शोहर की जरूरत है। जहां दुआ रह रही है नौशेरवान गजनी के साथ, मुझे भी वहां रहना है, या नौशेरवान गजनी को इधर बुलाएं या मुझे शहर में भेज दें। ऐसे कैसे हो सकता है? 4 साल हो चुके हैं हमारी शादी हुए को, लेकिन अभी तक उसने मुझे कबूल नहीं किया। और आगे से गजनी की माँ कहती है, मेरी बात सुनो कशमाला, जल्दबाजी में मत पड़ो, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में उतरो, ठंडा करके खाओ, ऐसे करोगी तो तलाक हो जाएगी। गजनी तुम्हें एक आंख भी नहीं तुम्हें देख रहा, देखना चाहता, पसंद नहीं करता। और आगे से यानी कि गजनी का बाप कशमाला से साफ कहेगा, गजनी तो सिर्फ और सिर्फ रिश्ता निभा रहा है तो हमारी वजह से, हमने उसके ऊपर प्रेशर दे रखा है, वरना अगर उसकी बात की जाए तो तुम्हें तो वो कभी भी कबूल नहीं करता। कशमाला आगे से कहेगी कि ये सारी धमकियां मुझे मत सुनाएं, मुझे मत सुनाएं, मुझे फिलहाल मुझे मेरा हक चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा मैं अदालत में जाऊंगी, अदालत में जाऊंगी। नाज़रीन सामीन, कशमाला अपनी सास ससुर के सामने रो धो के चली जाती है। अगली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कशमाला ने तो अपने बच्चों को डाल बना के रख दिया, यानी कि साफ साफ कह दिया, अपने बच्चों को कह दिया गजनी चच्चू आएंगे ना तो उन्हें कहना, चाचा ताया अब्बा हमने भी आपके साथ जाना है, हमें भी साथ लेके जाओ। और अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे नौशेरवान गजनी अपनी माँ बाप से मिलने के लिए गांव में हवेली में आता है, तो वहां पे कशमाला बड़ा हंस के इस्तकबाल करती है, लेकिन नौशेरवान गजनी ने
हमेशा की तरह कशमाला को इग्नोर किया, लेकिन कशमाला ने अपने बच्चों को गजनी के आगे कर दिया। और गजनी जब अपने माँ बाप से और बच्चों से मिलके दोबारा शहर वापस आने लगेगा, तो वो बच्चे आगे खड़े हो जाएंगे दोबारा और हाथ जोड़ के कहेंगे कि बाबा, आप तो हमारे चाचू थे, लेकिन किस्मत ने आपको हमारा पापा बना दिया है, लेकिन हमें भी अब आपके पास जाना है, तो खुदा का वास्ता है या आप यहाँ पे आ जाए या हमें अपने पास बुला लें, बाबा हम अब इकट्ठे रहना चाहते हैं। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, यानी कि गजनी नौशरवान गजनी जाफर को हुक्म देगा कि मुझे नहीं पता, जल्दी जल्दी जाओ और जुनैरा से कहो अपना अड्डा 2 दिन के अंदर साफ कर दे, वरना तेरा काम तमाम कर दूंगा। और गजनी जाफर को ये भी कहेगा कि जो जुनैरा से हम वीडियो लेके आए थे, उसके अंदर जो लड़का या आदमी नजर आ रहा है, उसका पता करो वो लड़का कौन है और कहाँ का है। और आगे से अगली एपिसोड में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मजीद बातें आपको अगर जानिसार की जाननी है तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा सारा कमेंट तो जरूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नामों में से 10 नाम 10 कमेंट में लिख के जाइएगा। चले जी, अब बात करते हैं जानिसार ड्रामे की अगली मुकम्मल प्रिडिक्शन के बारे में, यानी कि कंप्लीट स्टोरी के बारे में। क्या होगा इस एपिसोड में, ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग होगा या कि सैड।